Assalamu alaikum. Good morning, class 4. Let's start with the week 5 and day 1. Computer. Chapter number 3, more about the system unit. As you know, on the day 1, we have to read the chapter number 3. So let's start the reading. It's shown from the chapter name more about the system unit. इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम यूनिट के बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स शेप पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. एक बॉक्स शेप पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसके ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो इंसर्ट होते हैं. In this chapter we read about these electronics or electrical components. The first one is a chip. A chip is a device that process the data in a computer. ये क्या करती है? डाटा को प्रोसेस करती है, उसको यूजेबल बनाती है. A computer chip is capable of carrying and transmitting the electronical signals for operating the computer. ठीक है, इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है for carrying the electrical signals or for the operating computer. There are the different chips. The two chips are discussed. They are processor chips and memory chip. Processor chip carries out the calculation. Processor chip क्या करता है? Calculation work carry करता है. Memory chip stores the data for processing. Next है motherboard. Motherboard is a foundation of all electrical components for taking in the data for the processing. It is also called a integrated circuits. What is a integrated circuit? मतलब कि जिस पे बहुत ज़्यादा components integrated होता है किसी चीज़ को sum up करना, उस पर बहुत ज़्यादा जो electrical component होते हैं वो inserted होते हैं. That's why motherboard is known as an integrated circuit. Number of chips is inserted on a motherboard and transistors. Next हमारे पास क्या है? CPU. CPU is also known as a microprocessor. CPU is the most important chip inside the system unit. ये क्या most important? It is also a chip. It is also a chip inside the system unit. CPU is also known as a brain of computer. As you all know, it can transmit a million of the instruction in a second. It comprises the component as below. इसमें जो different components होते हैं, first one is the ALU, arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit कौन से functions perform करते हैं? Arithmetic function comparative and logical, मतलब कि plus minus, addition, subtraction, comparative किसी चीज़ को compare करना, less than, greater than and logical functions. Control unit enter data. It controls all the activity going on in the system unit. Next the memory unit. It stores the input for processing by various चिप्स. ये स्टोर्स डाटा. ये क्या करते हैं? स्टोर द इनपुट. ये इनपुट को स्टोर करते हैं. ओके क्लास, नेक्स्ट दे गिव अस द स्टोरेज डिवाइसेस रैम एंड रोम. रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी. व्हेन मतलब कि अगर हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ दीज वर्क डन इज नॉट सेव प्रॉपरली, these work will be removed when we closed our computer. This work was removed. Next is a ROM. ROM stand for the read only memory. It is a permanent memory. ये क्या है? ये permanent memory है. जब कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है तब भी जो डाटा रोम पे स्टोर है वो स्टोर्ड ही रहता है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस. रैम रोम क्या था? इंटरनल मेमोरी थी और दीज आर द एक्सटर्नल मेमोरी. फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क साइड पे देखिए, उसकी पिक्चर भी है. फ्लॉपी डिस्क इज अ पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस. इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. इसके पास क्या है? एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, अबाउट 1.44 MB. नेक्स्ट है जिप डिस्क एंड जिप ड्राइव. जिप डिस्क like a zip disk is also like a floppy disk. It is a portable and its storage capacity is 100 to 250 MB. Next is CD-ROM or CD-ROM drive. CD-ROM drive is also a portable storage device. It is a fairly large storage capacity. इसकी जो है ना zip disk या floppy disk से ज़्यादा storage capacity है, which is a 750 MB. All kind of the software program mostly come on the CD-ROM. जो programs है और software है वो किस में आते हैं? CD-ROM की form में आते हैं. Next class we have a jazz disk or a jazz drive. Jazz drive जो है, it is also a portable data storage device. It played in a jazz drive and its storage capacity is up to 2 GB. So this disk is very fast and store up to the 2 GB of the data. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डाटा स्टोरेज डिवाइस. ये क्या है? परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है और ये इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वेरी लार्ज, अप टू द 1000 GB. The stored data can be modified as and
व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी वो रिक्वायर्ड होता है हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ पावर सप्लाई. पावर सप्लाई इज लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ द सिस्टम यूनिट. ये सिस्टम यूनिट के कॉर्नर पे लोकेट करती है, जो कि कन्वर्ट करती है लोकल सप्लाई वोल्टेज को वर्केबल वोल्टेज में. इसका प्रोसेस क्या है, ये कन्वर्ट करती है सप्लाई वोल्टेज लोकल टू वर्केबल वोल्टेज. नेक्स्ट वी हैव अ बैटरी. व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है. इन अ बैटरी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या करती है, ये भी कन्वर्ट करती है केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द बैटरी. Battery that work by the chemical in dry state, the battery that work by the chemical in a liquid state, dry state or liquid state. Lithium battery is an example of the dry batteries. These are the lithium batteries. The dry battery commonly used in a personal computer. क्या हमारे पास क्या है, dry battery ज़्यादातर यूज़ होती है. It is located on a motherboard. As we know, the motherboard is an integrated circuit, so the battery is also located on a motherboard. The main function are described below. The main function of this battery is the supply power to a computer clock and calendar. It also keep powered up the part of the RAM and stores the important data. ये हमारे पास क्या है, सप्लाई करती है पावर किसको, कंप्यूटर की क्लॉक एंड कैलेंडर को. also the powered up the part of the RAM. RAM के जो पार्ट्स है उसको भी क्या करती है, पावर्ड अप करती है. Okay class, our next subject is a modern English. We start the chapter number 2. Pip meets a convict. Convict means a prisoner. Basically in this chapter it is a story about a meeting between the Pip and a prisoner. So you people have to read the chapter number 2. We are moving on. What's meaning of the chapter number 2? Okay class, what's meanings of the chapter number 2? Pip meets a convict. First of all is a battery, a fort. It's a fort, killer, blacksmith, a person who created tools and object out of a metal. Blacksmith मतलब कि एक शख्स जो कि मेटल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट और टूल्स को प्रिपेयर करता है. नेक्स्ट अ कॉर्स, रफ, खुरदरा. कन्विक्ट, प्रिजनर, कैदी. नेक्स्ट ग्रब, अ स्लैंग वर्ड फॉर अ फूड, फूड के लिए एक लफ्ज़. मार्श, अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन अ स्मॉल प्लांट्स. एक वेटलैंड एरिया जो कि कवर्ड है वाटर के साथ, मतलब कि वाटर, वेटलैंड एरिया बाय वाटर यूजुअली जो कि कवर्ड है स्मॉल प्लांट्स के साथ. नेक्स्ट नेटल्स, अ वीड दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच्ड. एक वीड, अ वीड दैट स्टिंग द स्किन, जब हम उसको छूते हैं व्हेन टच्ड तो ये क्या करता है, काटता है, स्टिंग. ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. ऑर्फन बेसिकली इसका मतलब होता है यतीम, मतलब ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन पेरेंट्स मर चुके हैं, नहीं है. रेवेनियसली ईटिंग फास्ट ड्यू टू द क्रीड. इसका क्या मतलब है, जल्दी जल्दी खाना भूख की वजह से. टॉम्बस्टोन, अ लार्ज फ्लैट स्टोन लेड ओवर अ ग्रेव. टॉम्बस्टोन का क्या मतलब होता है, एक लार्ज फ्लैट स्टोन, एक पत्थर जो कि कब्र के ऊपर लगा होता है. सो क्लास केयरफुली read or learn these words meaning. Okay class, our next subject is the social studies, chapter number 3, climate. On the day 1 we read this chapter, climate. Okay class, in this chapter we will discuss about the climate of the different places and the factor the factor those affect the climate. First of all, the weather. What is the weather mean? Weather means a day by day condition of the heat and cold. Weather means a day by day condition, but the climate means a weather condition in a region over a long period of time. Weather जो है वो short period of time के लिए होते हैं, day to day, but a climate is a weather condition in a region over a long period of time. For example, the climate of the northern Pakistan is a cold, whereas the climate in the most part of the Punjab is dry, but during the monsoon season it's rain a लोट. क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करता है. फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न पाकिस्तान हम कहते हैं, वहाँ पर क्या है, ज़्यादा कोल्ड रहता है. ये क्या है, उसका क्लाइमेट है. नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज ऑन द इक्वेटर एंड कोल्ड नियर द नॉर्दर्न नियर द पोल्स और अ टेम्परेचर. The climate can also be dry, wet, which show the rainfalls is an important feature of the climate. मतलब कि जो वेदर है वो ड्राई भी होता है और वेट भी होता है. जब ड्राई होता है तो ये हमें क्या जाहिर करता है कि रेनफॉल हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. Climate has a great effect on a people's life, plant, crops and on a land in a area.
वो कह रही है कि क्लाइमेट जो होता है वो अफेक्ट करता है पीपल्स की लाइफ को, हमारी लाइफ को, जैसे कि जो फसलें हैं, डिफरेंट हमारे जो डेली रूटीन है उसको क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करता है। देयर आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, इधर उन्होंने क्या बताया हुआ है, फैक्टर्स बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेनफॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है, रेनफॉल इंपॉर्टेंट है। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन, मतलब कि कहीं ज़्यादा बारिश होती है और कहीं कम बारिश होती है। सम एरियाज़ आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव अ वेरी लिटल और नो रेन, मतलब कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो खुश्क होते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है। रेनफॉल इज़ स्मॉल। नेक्स्ट, हाइट और अल्टीट्यूड। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, अर्थ क्या है, सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट कोल्ड, मतलब कि जैसे जैसे हम हाई मूव करते जाएंगे द वेदर इज द क्लाइमेट इज कोल्ड। सो द कोल्ड दैट इज़ वाई द कोल्डर इन द माउंटेन्स एंड नियरर द कोस्ट, मतलब कि जब हम माउंटेन्स वाली साइड पे जाते हैं, बाहरी इलाके की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, सर्दी ज़्यादा होती है क्योंकि वो क्या है, हायर है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोजनेस टू अ सी के करीब के इलाकों का, मतलब कि सी के करीब के जो इलाके हैं उस पर कैसे वेदर और क्लाइमेट अफेक्ट करता है। प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव द कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड, this help to keep the temperature down in the hot summer months. Karachi has a temperate climate since it is neither very hot or nor cold. जैसे कि कराची में आप सबको पता है समंदर है, that's why मतलब कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या ना तो वो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही वहाँ गर्मी होती है। वो जो टेम्परेचर वहाँ पर होता है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है। नेक्स्ट है शेल्टर्ड एरिया। शेल्टर्ड एरिया बेसिकली सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। फॉर एग्जाम्पल अ रेंज ऑफ द हिल्स can act as a barrier. One side may get lots of the rain but the other side gets very little. इधर बता रहे हैं कि कुछ एरियाज जो होते हैं वो शेल्टर्ड होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ द हिल्स, इधर जो है एक बैरियर, दे एक्ट लाइक अ बैरियर कि वन साइड जो है दे रिसीव अ लॉट्स ऑफ अ रेन बट अदर साइड इज़ अ वेरी लिटल। दिस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस एज इन द केस ऑफ द चित्राल एंड गिलगित विच आर इन अ रेन शेडो और शेल्टर्ड एरियाज। Okay class, next one is a monsoon. What is a monsoon? Monsoon is a seasonal wind that blows from the June to the September, मतलब कि ये एक seasonal wind है जो blow करती है June to September. It brings the rain when it blow across from the south west over the Indian Ocean and Bay of the Bengal. ये क्या करती है, rain को bring करती है जब ये blow करती है कहाँ से, south west to the Indian Ocean. नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि इन पाकिस्तान द मानसून अराइव्स इन द समर, एज यू नो गर्मियों में क्या आता है, मानसून का मौसम होता है। रेन क्लाउड्स ब्लो टुवर्ड द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। द मानसून रेन्स इन पाकिस्तान फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ द जुलाई एंड सितंबर, मतलब कि ये जुलाई एंड सितंबर इनके दरमियान में क्या आता है, ये वाला मौसम मानसून का मौसम आता है। और रेन्स एंड मानसून रेन स्टार्टेड इन पाकिस्तान। Winter rainfall is mainly in the north and west country brought by the wind blowing over the Iran and Afghanistan. By the time they reach the Pakistan there are little rain left, मतलब कि जब ये विंटर रेनफॉल स्टार्ट होती है वो नॉर्थ वेस्ट जाती है, ईरान एंड अफगानिस्तान से होती है, और जब तक ये पाकिस्तान में पहुंचती है जो रेन जो बाकी बारिश बचती है वो बहुत थोड़ी बच जाती है। Next we have the major climate zones of the Pakistan. The first one is highland. Highland are the mountain areas, मतलब कि पहाड़ी इलाके ऊंचे होते हैं, so this is known as the highlands. Highlands fall in the region of the northwest and westerns. They have the long cold and snowy winter. As you know, higher the जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो सर्दी ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो द हायर एरियाज में क्या होता है, कोल्ड ज़्यादा होता है, दैट्स वाई द माउंटेन्स आर कोल्ड। रेनफॉल इज़ द हाइस्ट इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द वेस्टर्न माउंटेन्स गेट द लेस रेनफॉल। नॉर्दर्न एरियाज में क्या होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है देन द वेस्टर्न। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एरिड्स। एरिड्स मीन्स अ ड्राई। द एरियाज ऑफ द साउथ वेस्टर्न लाइक बलोचिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न डेजर्ट्स फॉल इन दिस रीजन। द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि बलोचिस्तान और ये जो साउदर्न ईस्टर्न एरियाज हैं यहाँ पर क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है सेमी एरिड्स। सेमी एरिड्स द एरियाज ऑफ द अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन एंड पोटोहार इन दिस रीजन। दिस रीजन हैज़ द हॉट समर, कोल्ड विंटर एंड मानसून, मतलब कि इसमें सारे मौसम आते हैं, गर्मी, हॉट समर, कोल्ड विंटर एंड मानसून रेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस्टल। दिस रेन इंक्लूड्स द कराची, मकरान्स कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड एंड माइल्ड ड्यू टू द सी ब्रीजेज, मतलब कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सी ब्रीजेज की वजह से क्या रहता है, माइल्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। ओके क्लास, एट द लास्ट दे
tell about the weather report. What does the weather report say? Why the forecasting of the weather is important? Because as you know, the climate affect the human lives, daily routines. So the weather forecasting is important. They help the people to protect themselves from the different kinds of the climate. As they are the rainy day, they protect themselves, they protect their crops. इट्स फार्मर्स और दैट देर विल बी नो रेन, दे कैन अरेंज द वाटर देयर क्रॉप्स. मतलब कि अगर फार्मर्स को पता हो कि अब बारिश नहीं होनी तो वो अपनी फसलों के लिए क्या करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं. अगर ज़्यादा बारिश होनी है तो अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं. इस तरह से ये जो वेदर फोरकास्टिंग है वो हम सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. Okay class, our next subject is the science, which is the last subject of the day 1, chapter number 3, digestion. On the day 1 we also have to read the chapter number 3, digestion. In the chapter 3 we read about the digestion. Digestion मतलब कि foods जो होती हैं वो directly हमारे straight, the food can not go straight to the parts of your body. मतलब कि वो straightly नहीं जाती, उनको मतलब कि substances में break down किया जाता है, that could be absorbed by our body. There are the different parts that digest, that help in the digestion of digestion in our body. The first one is the teeth. A baby is born without the teeth. Teeth only begins to grow after the baby is a few months old. When the baby is born, it cannot chew the solid foods. It can also only feed on the milk and other liquid. When it grow a little older, a baby needs the teeth to eat the solid. At the age of about the 3, a child has a set of the 20 teeth. These teeth are called a baby teeth or a milk teeth. इधर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास क्या होते हैं, दांत नहीं होते. वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चा जब होता है तो वो वी कैन फीड दैम ऑन द मिल्क और अ लिक्विड थिंग्स. सो व्हेन दे ग्रो एट द एज ऑफ द अबाउट 3, अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. उसके पास कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ. दीज टीथ आर नोन एज अ मिल्क टीथ. Okay class, next we have the types of the teeth. There are the different types of the teeth. Permanent. At the age of the 6, the milk teeth start to fall. 3 पे क्या आते हैं, milk teeth आते हैं, और at the age of the 6 they start to fall. There are the 32 teeth in the second set. Second set में हमारे पास कितने होते हैं, 32 होते हैं, which are called a permanent teeth. जो कि क्या होते हैं, permanent teeth होते हैं, वो बाद में टूटते नहीं हैं. If they are looked after properly, अगर वो सही से उनकी देखभाल, उनको देखा जाए, लुक आफ्टर किया जाए. There are the different type of the food. In Caesar foods, the first 4, the teeth at the front of the mouth that is used to cutting or biting the food is known as an incisor food. These are the 8 teeth. नेक्स्ट है कैनन, द पॉइंटेड टीथ. वो जो फर्स्ट जो टीथ्स होते हैं उनके जो साइड पर जो पॉइंटेड टीथ होते हैं उनको हम कहते हैं कैनन टीथ, बिकॉज दे टीथ आर पॉइंटेड एंड आल्सो शार्प. वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. द बिगर एंड फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ. जो माउथ के बैक पे होते हैं, जो बड़े भी होते हैं, बिगर एंड फ्लैटर होते हैं, उन टीथ्स को हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर. दी टीथ्स टू ग्राइंड अ च्यू फूड. इसको हम चुबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दे आर द टफेस्ट टीथ. ये क्या है, टफेस्ट टीथ हैं. सो नेक्स्ट इज अ कंसेप्ट चेक. अ बॉडी इज बोर्न विदाउट teeth. A 3-year-old child will usually have a set of 20 milk teeth. An adult who has looked after their teeth will usually have the 32 permanent teeth. There are the 4 different types of the permanent teeth in Caesar, canine, molars and premolars. So class, next we have how to look after our teeth. If we look after our teeth properly, the permanent teeth will stay permanent. If you look after your teeth properly, they will last a long time. When we eat a small things, we have to brush our tooth. We use the toothbrush, toothpaste and water to clean our teeth. Otherwise sometimes the teeth cover with a thin sticky layer of the germs. The germs affect your teeth and they will be broken down. Sugar form an acid can make the small holes in the animals that cover the teeth. मतलब कि अगर हम ज़्यादा इनटेक करते हैं शुगर को तो वो they make a jumps and make the holes in our teeth. The only way to stop the decay is to visit our dentist, and you have to fill the holes with the filling. Okay class, next we have how we digest food. First of all, we eat the food from our mouth and chewed it in the mouth. You use our teeth to tear and grind hard foods and make into the paste. The tongue helps to mix the food with the saliva. The stomach is
नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ द मसल्स, इट कैन स्टोर द फूड फॉर द सेवरल आवर्स। मतलब कि स्टमक हमारा क्या एक्ट ऐसा बैग, ये बैग की तरह एक्ट करता है जो कि फूड को स्टोर कर लेता है काफ़ी देर के लिए। द स्टमक रिलीजेज द जूस, वो ऐसे जूस रिलीज करता है जो कि डाइजेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड, जो कि हमारे जो फूड्स का है वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करते हैं। द फूड ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, सो द मसल्स हेल्प टू churn the food and mix it with the juices. The acid kills the harmful germs called bacteria and helps to digest the protein. Salivary glands in the mouth produce the saliva. Saliva soften the food and start the digestion of the starches. मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि salivary gland जो है हमारे माउथ में वो प्रोड्यूस करता है सलाइवा को, जो कि हमारे जो फूड है उसको क्या करती है, सॉफ्टन करती है और वो डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करते हैं। द थ्रोट लेट्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड अ फूड पाइप। हमारे जो थ्रोट में एक फूड पाइप होता है, द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, द ऑल्टरनेटिवली पुश द फूड फॉरवर्ड इन द टाइम ऑफ इट एंटर्स योर स्टमक। मतलब कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है तो हमारे जो फूड होती है वो स्टमक की तरफ मूव ऑन हो जाती है। नेक्स्ट है द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर। मतलब कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बट एक शॉर्टर होती है बट वाइडर, उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस बनते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे फूड को सॉफ्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, द सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। मतलब कि कुछ चीज़ें आप खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होती। देन दे पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, हेयर द वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। वहाँ से वाटर क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। एंड फाइबर एंड सॉलिड पार्ट्स ऑफ इट सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज अ फीसिस थ्रू द अनस। मतलब कि वो फीसिस के फीसिस थ्रू द मतलब कि उसको क्या कहते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ फीसिस कर देते हैं और उसको बॉडी से बाहर थ्रू द अनस, सेंट आउट थ्रू द बॉडी थ्रू द anus. Next, digestive food in the form of the nutrition pass through the walls into the blood vessels. The blood vessels transport the broken down substances to our body cells where they are used to provide the energy and build the new tissues. इधर इन्होंने बताया है कि न्यू टिश्यूज़, हम डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी कैसे लेते हैं और उससे न्यू टिश्यूज़ और एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जाती है हमारी बॉडी को। So the next is a pancreas, liver and gallbladder. There are the different types. The pancreas is a long flattened organ located in the belly that helps to break down the food by producing a digestive fluid. ये भी क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करती है और वो क्या करता है, हमारे डेट ब्रेक डाउन सा फैट को ब्रेक डाउन करता है और फूड के पार्ट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट, द लीवर हैव द मैनी फंक्शन। इट हेल्प्स, लीवर बेसिकली क्या करता है कि इट फिल्टर्स आवर ब्लड एंड स्टोर द फूड एनर्जी, और उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है फूड एनर्जी को। नेक्स्ट, इट इज़ द लार्जर ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द बॉडी प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड अ बाइल। ये एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल। द बाइल इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर इन विच द नीडेड रिलीज इनटू द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. So class, you have to read this chapter very carefully and